Next, we have someone very special for whom we were waiting so eagerly. He's a former interim director officer CBI. He joined CBI in 2016 and is an IPS officer of 1986 batch. He's a chemistry postgraduate and did his research in Madras IIT before joining the IPS in 1986. He's known for his viral tweets on social media platform. He's one of those signatories who became vocal against irrelevant and immaterial comment made against Nupur Sharma by a division bench in the Apex Court. His vision is of a civilized India and mission is equal rights for Hindus. Ladies and gentlemen, can we have a huge round of applause for M. Nageshwar Rao? You can start the presentation. Namaste to all of you. Rain has played the spoil sport. Otherwise, you have to start the program. How many of you can understand English or Hindi? Which one should I continue? Of course, I am comfortable in English. Hindi, English. Okay, I'll try to make it a bilingual one. And there is a danger, there is a problem of being the last speaker or the last but one speaker because people lose interest and also is getting close to the dinner time. But let me warn you that it's a quite technical issues that I would be raising this. Now, I'll go by the theme of the meeting conference, that is appeasement of no one and oppression of no one. 75 years of independence, expectations and realities. It's a very important topic, and I thank Prasunji for inviting me to be with you and share my thoughts on this occasion. We met Prasunji, I think both of us met in May in Goa in another conference, and then he invited me, I agreed, and I thank him, and I also congratulate Atmadeep and all the people involved with Atmadeep for the wonderful work you are doing, and I congratulate them. Now, I speak on the civilization. What was our civilization and what were the expectations after so many years of colonialism and then foreign rule, when we got political independence on 15th August 1947, and whether those expectations have been met. This is the topic I have chosen. So, next please, next slide. Now, what were our expectations? If you see the constitution, अगर आप संविधान देखें तो आर्टिकल 1 बोलते हैं तो इंडिया दैट इज भारत. इसका मतलब ये है, is it, can you read that? Is it okay? You can't read it? Yes sir, yes sir. Oh, I think you can come slightly this side, people will, this can it be? I will read out for you. When framers of our constitution used those words, that is India, that is Bharat, in that sequence, in the very first article of the constitution, they were conscious of certain facts. वो क्या फैक्ट्स था? What were those? पहली फैक्ट ये है that India is just a new name for a old ancient country which is the homeland of the oldest civilization surviving in this world. That means सबसे पुरातन सभ्यता जो अभी बचा हुआ है, उस सभ्यता का ये होमलैंड है भारत. और वो सभ्यता, that civilization has been informed by Sanatana Dharma. अब सनातन धर्म को निकालिए, वो भारतीय सभ्यता में कुछ नहीं रहा है. They were conscious. ये सनातन धर्म consisted of Hinduism, Jainism, Buddhism,
Sikhism, and all those spiritual systems that originated in India. This is fact number one. They were conscious, that is why they said India that is Bharat. वो भारत that is India नहीं बोला है. Second, Indian state किसी के एक संपत्ति को एक इनहेरिटर होता है. सपोज मेरा पिताजी का संपत्ति को मैं इनहेरिटर हूँ और आपका पिताजी का संपत्ति को आप इनहेरिटर है. वैसा ही इस सिविलाइजेशन का, ये सभ्यता का इनहेरिटर कौन है? इनहेरिटर ये भारत का जो इंडियन स्टेट है, इंडियन गवर्नमेंट है. वैसा ही हमारा जो the ancient civilization of India, Indian state is the inheritor of this civilization, and inheritor का क्या दायित्व होता है? To protect it. Here no inheritor has no right to deplete it. वो protect करके फिर next generation को देना है. मेरा पिताजी का संपत्ति I cannot deplete it. I can only add and then pass it on to my children. That is the Indian state is the inheritor and protector of this civilization. Number 3, preamble. अगर आप जो संविधान का जो preamble देखने से उसमें ये है that unity and integrity of the nation. ये unity and integrity क्या है? हम किसके साथ में यूनाइट है? हम किसके साथ में इंटीग्रेटेड हो गया? हमारा जो यूनिटी है, हमारा जो सभ्यता के साथ, हमारा जो इंटीग्रिटी है, हम इंटीग्रेटेड हुआ है, वो हमारा सभ्यता के साथ. ये है जो प्रियम्बल का अर्थ है, जो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी. एंड दिस इज अक्रॉस द सिविलाइजेशन, अक्रॉस द युगास. दैट मींस ये सभ्यता आज का नहीं है, ये तो पुरानों साल से, तो कितना साल से, हजारों साल से चल के आ रहा है. Thus, the framers of the constitution were aware that ये constitution, इसको संविधान, ये हमारा जो सभ्यता को रक्षा करने के लिए. परंतु हुआ क्या है? So we'll go to the next slide. ये है वो मैंने जो बोला था एक्सपेक्टेशंस था, बट अभी रियलिटी क्या है, सच क्या है, वास्तव में क्या है? इसमें अगर कोई कम्युनिटी, कोई सभ्यता अगर बच के रहना है, उसके लिए 4 अधिकार या फ्रीडम और स्वेच्छा चाहिए. उसमें है नंबर 1 पॉलिटिकल, रिलीजियस, कल्चरल, एजुकेशनल. बट परंतु हमारा जो संविधान, जो पहले तो लिखा है आर्टिकल 1 और प्रियम्बल में अच्छा लिखा है, परंतु वो बीच में अंदर में क्या वही वेदर द सेम आइडिया कंटिन्यूज और नॉट, दैट इज अ रियलिटी, विल सी. पॉलिटिकल फ्रीडम, हम जब तक जो जिस एरिया में, इलाका में जो हिंदूज और इन मेजॉरिटी, पॉलिटिकल फ्रीडम का कुछ समस्या नहीं है. परंतु जब वो माइनॉरिटी बन जाता है, कश्मीर, वहाँ समस्या उत्पन्न हो जाता है. ये समस्या सब जगह में, भारत में किसी के, कश्मीर का ये एक जगह नहीं है, इट इज ऑलवेज इन ऑल अदर प्लेसेस. सो देयरफॉर द पॉलिटिकल फ्रीडम इज डिपेंडेंट ऑन your demographic majority. In other words, demography is the destiny. जनसंख्या हमारा जो भविष्य है. रिलीजियस फ्रीडम, ये आर्टिकल 25 में ये रिलीजियस फ्रीडम सबको देते हैं. इसमें 3 भाग है. वो जो नेक्स्ट प्लीज आप चलते रहिए. नेक्स्ट, हाँ, इसमें जो बोल्ड किया है, प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट रिलीजन. ये तीनों विषय में हम चर्चा करना है. थोड़ा टेक लिटिल टाइम. ये वेदर हिंदुओं के लिए, जो सनातन धार्मिकों के लिए, जो हिंदू, सिख, जैन, बुद्ध, ये सब के लिए हमारा जो फ्रीडम है क्या. अब कश्मीर में हुआ क्या है आप सब लोग जानते हैं. लेकिन वहाँ जब आप माइनॉरिटी बन जाते हैं, वहाँ तो समस्या उत्पन्न होता है. दूसरा, अलग अलग क्षेत्र में भी यही हो रहा है, खाली कश्मीर का बात नहीं है. इसका मतलब ये है, इंडियन स्टेट और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अनेबल टू प्रोटेक्ट द राइट और फ्रीडम टू प्रोफेस रिलीजियन बाय हिंदूज व्हेन हिंदूज हैव बिकम माइनॉरिटी इन अ पर्टिकुलर एरिया. नाउ एनी राइट इज एज गुड और एज बैड एज इट इज एनफोर्स्ड. खाली वो कागज पे लिखने से तो थोड़ी राइट नहीं होता है, वो
एक्चुअली फील्ड में होना चाहिए, वो राइट को, दैट अधिकार, दैट स्विच हैज टू बी एनफोर्स्ड. बट जब हिंदू माइनॉरिटी हो जाता है, द राइट टू प्रोफेस हिंदुइज्म becomes casualty, which the Indian state and Indian constitution is unable to protect. As for whenever they are, when in the case of Hindus, Sikhs, Buddhists and Jains. And whenever I use the term Hindu, it also includes Jain, Buddha and Sikh. Because the Article 25 में वही बोलते हैं. Whether Hindus have right to practice, next please. Practice, हमारा प्रैक्टिस करने के लिए हमको है क्या नहीं. अब देख लीजिए आर्टिकल 44 में बोलते हैं खाली हिंदू कोड बिल बनाया, उसमें से कल हिंदुओं का सब कानून बनाया, बाकी लोगों को छोड़ दिया है. तो यहाँ हिंदू इंक्लूड्स अगेन जैन, बुद्ध, सिख एंड दिस. देन आर्टिकल 51A, आई थिंक अनफॉर्चुनेटली वो तो यू आर नॉट एबल टू सी दैट. आर्टिकल रिलीजियस प्रैक्टिसेस, कस्टम्स, सम ऑफ दोज थिंग्स हैव बीन मेड क्राइम्स in states like Karnataka, Maharashtra. Superstitions, they declared it as superstitions and then they have been made crimes. और वैसा ही अघोरास आपने सुना होगा. अघोरास को हमने क्रिमिनल्स बोल के डिक्लेयर कर दिए इन द लास्ट 70 years. वो अघोरा जो विद्या तो खत्म हो गया. और आनंद मार्ग इसको आप तो सुना है, बिकॉज ड्यूरिंग द CPM टाइम जो भी आनंद मार्ग है उसको तो पूरा मैंने क्रिमिनल बोल के डिक्लेयर किया. वो पहले तो जो क्रिमिनल ट्राइब, ब्रिटिश लोग ने क्रिमिनल ट्राइब बोल के डिक्लेयर करके बहुत पॉपुलेशन को क्रिमिनल्स बना दिया. जैसे CPM का टाइम में जो भी आनंद मार्ग है उसको तो क्रिमिनल बोल के डिक्लेयर किया. एंड वॉट एवर दैट विद्या इज गॉन, तांत्रिक विद्या भी खत्म हो गई उसके साथ. देन सबरीमला बारे में आपने सुना होगा, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर. वैसे जल्लीकट्टू, जितना भी जो दिवाली, मैंने जो क्रैकरलेस दिवाली, वाटरलेस होली, ऐसा ही होता है. बट दूसरा उनका जो फेस्टिवल्स होता है उस समय ये सब तो कुछ नो सच स्लोगन्स आर गिवन. देन पशु बलि, आप जो रिसेंटली सुना होगा 1-2 साल पहले, जो त्रिपुरा में त्रिपुरेश्वरी मंदिर में पशु बलि होता है, जो कभी कभी होता है, उसको जो ऑनरेबल हाईकोर्ट ने डिक्लेयर किया दैट इज इट कैन नॉट बी डन. परंतु आर्टिकल 48 बोलते हैं that you should not do cow slaughter or cattle slaughter. But India is the second largest exporter of beef. We kill every day 1 lakh cattle for exporting beef. ये यहाँ खाने के लिए नहीं है, बाहर को एक्सपोर्ट करने के लिए 1 लाख cattle, which includes all other animals that you know. Now it doesn't include goats and other things, but only the beef giving animals, they are slaughtered officially, and for which the government gives incentives, central government gives incentives. अब इतना जो कैटल को मारते हैं, स्लॉटर करते हैं, वो क्रूएल्टी नहीं है. बट अगर आप कभी हिंदू फेस्टिवल का समय में अगर कोई मंदिर का सामने पशु बलि दे, देन दिस इज इलीगल. देन कोर्ट्स, अब जो भी देखो हिंदुओं का जो फेस्टिवल्स, हिंदुओं का ट्रेडिशंस, कस्टम में सभी कोर्ट इंटरफेयर करते हैं. परंतु दूसरा उनका तो नहीं होता, नेदर क्रिश्चियन और मुस्लिम. अब जो देखा होगा जो पीस मिशंस, हेल्थ हीलिंग मिशंस जो क्रिश्चियन मिशनरीज जो करते हैं, बट वहां तो कुछ ये नहीं है, दे आर पास्ड अप एज रैशनल. बट whereas whatever small thing that is done by Hindus, it is being declared as a superstition. So हमारा जो free practice of Hinduism is now under threat, in spite of the constitution giving us that right, freedom. Next is propagate. Propagate means we must know that in this world there are 2 types of religions. एक तो है Abrahamic, that means it comes from Abraham, that is Judaism, Christianity and Islam. They are called Abrahamic religions. The other is non-Abrahamic. Non-Abrahamic अभी बचा हुआ है, mostly Hinduism, Buddhism, Jainism, Sikhism and छोटा ये है. Then ये Abrahamic religions are expansionist and they convert because उसका तो धर्म ग्रंथ बोलते हैं that
should convert and the whole world should become people belonging to that. But whereas no, in case of Hinduism and these, we don't know how to convert also. हमारा शास्त्र में तो कहाँ नहीं लिखा है, हम तो उस दिशा में सोचता भी नहीं है. So I compare Abrahamic religion with a non-vegetarian eating person and a Hindu religions or the non-Abrahamic religions with a vegetarian one. एक तो कार्निवोरस है, एक हर्बिवोरस है. नो ये दोनों को अगर सपोज ये जंगल में एक शाकाहारी है, एक मांसाहारी जो जंतु है, और दोनों को बोला है हम आपको समान अधिकार दे रहा है, आप जो जिसको चाहे खाओ. Non-vegetarian, for non-vegetarian animal it is a license to kill anyone and eat. Whereas for vegetarian animal वो जानता नहीं है जो कैसा खाना है जो non-vegetarian. So is it an equal right? In the name of equality, we have built in an apparent inequality. There is an inequality in the so-called equality. So therefore this propagate word is the most dangerous one. Then ये जितना जो विश्व में जितना जो संविधान है, भारत का संविधान एक ही संविधान है जिसमें जो प्रोपगेट वर्ड लिखा है. आप अमेरिका में भी देखिए, यूके में भी देखिए, जापान में भी देखिए, चाइना में भी देखिए, जितना जो इस्लामिक कंट्रीज है उसमें भी देखिए. Whichever country you see, you can search in the internet. Indian constitution is the only one which gives propagate religion as a fundamental right, which is a license for the Abrahamic religions to convert Hindus. That means we are inviting them. You come under this. Okay. Article जो हमने बोला जो आर्टिकल 13 ऑफ द ग्रीक कॉन्स्टिट्यूशन भी बैन करते हैं, इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन सब वो तो कन्वर्शन बैन है. सो दिस इज द थिंग. सो इट इज लाइक नो देयर इज ए in psychology there is a beautiful term called lemming complex. Lemmus is a animal in Greeceland. उसको कभी कभी वो आत्महत्या करने के लिए सडनली उसका कोई एक आइडिया आता है, वो जाके जो भी पत्थर मिलता है ना उसको तो डायरेक्टली हेड ऑन कोलिजन करके मर जाता है. तो हिंदुओं का परिस्थिति यही है. सो लिविंग कॉम्प्लेक्स, we have put this in our constitution, inviting people that giving them fundamental right, तुम आगे हमको धर्म परिवर्तन करो. So ये है जो this is the lemming complex Hinduism and Hindus are suffering from. Next slide please. And the last one about the religious, that means हमारा जो माने profess, practice and propagate, ये तीनों में तो आपने बताया. Now about a मंदिर चलाने के लिए वेस्ट बंगाल में तो इतना समस्या नहीं है, बट नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ में मंदिर का जो सरकार का नियंत्रण में बहुत है. आर्टिकल 26 बोलते हैं सबका तो समान अधिकार है, इसमें कुछ समस्या नहीं है. बट रियलिटी क्या है? नेक्स्ट प्लीज. रियलिटी में सभी स्टेट, मोस्ट स्टेट्स एक्सेप्ट आई थिंक बंगाल एंड फ्यू अदर स्टेट्स, they made laws taking over temples, Hindu temples only. अभी तक more than 2 lakh Hindu temples have been taken over by government. Suppose Tamil Nadu में 44,000, in Andhra Pradesh around 43,000, in Telangana around 17,000, in Orissa it is 17,500, in Karnataka it is about 28,000. यहाँ तो इतना ही देखिए 5-6 राज्यों में तो, और केरला में 3,500. सो वैसा महाराष्ट्र, गुजरात. सो आप यहाँ भी देखिए जो कश्मीर टू कन्याकुमारी, सोमनाथ टू इम्फाल, इवन इम्फाल में जो गोविंद जी का मंदिर है वो भी सरकार का अंडर में है. सो जितना बड़ा बड़ा मंदिर है, इवन यहाँ भी जो प्रसून जी बोल रहा था कि कुछ मंदिर भी यहाँ भी जो सरकार का नियंत्रण में है, इसका प्रभाव क्या हुआ है? ये जो मंदिर पर्टिकुलरली विशेषकर साउथ एंड वेस्ट में उसका बहुत संपत्ति है. 20 लाख एकड़ जमीन ये मंदिर का संपत्ति है. 20 लाख एकड़, 20 lakh acres. In Andhra Pradesh itself it is 5 lakh acres. In Tamil Nadu it's around 4.5 lakh acres. In Telangana it's 1.5
65,000 एकर्स, ये सब सरकार का नियंत्रण में है। प्लस जो एनुअली जो हजार कोटि जो आदाय जो होता है, जो इनकम होता है, वो सरकार का नियंत्रण में जा रहा है। सो देन उसके बाद में यू सी द कंडीशन ऑफ आवर पुजारीज, इतना संपत्ति है, इतना इनकम है, बट वो द बेगर जैसा है। अब एक पादरी को देखिए कंडीशन, और एक पुरोहित और पुजारी को परिस्थिति देखिए, तो आर्थिक परिस्थिति देखिए, ये तो पूरा बेगर है, भिखारी बेगर है, वो तो पूरा ये धनी और अमीर जैसा है। और इसको टिकटिंग सिस्टम किया है। आप जहाँ देखिए, आपको जो भी मंदिर जाइए जो सरकार के पास टिकट, सिनेमा देखने के लिए जैसा हम जो टिकट देते हैं वैसा ही है, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स आप जो भी हो। दैट मीन्स हमारे भगवान को देखने के लिए, हमारा देवी देवताओं को देखने के लिए हम सरकार को पैसा देना है। इसका मतलब क्या है? ये औरंगजेब का टाइम में जो जिजिया टैक्स था वो कम था, बिकॉज औरंगजेब तो ऐसा तो कभी नहीं लगाया। बट यहाँ तो 2 लाख मंदिर में, देश में आप टिकट परचेज करके ही आपका जो भगवान को, देवी देवता को दर्शन हो सकता है। दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स जिजिया टैक्स हिंदुओं को ऊपर लगाया जा रहा है। और साथ साथ इसका जो गवर्नमेंट ऑफिसेस भी बना दिया। अब देखिए जो तिरुपति मंदिर में देयर आर 44 क्रिश्चियंस सरकार ने अपॉइंट किया है। ऐसा आप जहां भी देखो, आप जो कटरा में जो माता वैष्णो देवी में, सभी जगह में वही परिस्थिति है। क्यों? बिकॉज जब जो भी मंदिर, जो भी सरकार का अंडर होता है, वो सेक्युलर हो जाता है। जब सरकार जो मैनेज करते हैं जो मंदिर को, वो सेक्युलर रूल्स वहां अप्लाई करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने जो पिछले दिसंबर में, मन आश्चर्य की बात है, देयर इज एक ज्योतिर्लिंग है वो श्रीशैलम बोल के आंध्रा में, वो मंदिर का जो कमिटी ने वो एक नोटिस निकाला है, जो यहाँ कुछ दुकान है वो हिंदू अप्लाई कर सकते हैं उसका मंथली रेंट लेके। कुछ मुस्लिम्स अप्लाई किया है, वो रिजेक्ट कर दिया। देन वो तुरंत सुप्रीम कोर्ट चला गया दैट ये मेरा अधिकार है उसमें ये फूल फल वगैरह बेचने के लिए। और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है दैट नहीं, यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट मुस्लिम्स। ये मंदिर है, मंदिर का अंदर है, वो प्रसाद परचेज करके हम चढ़ाव करना है, मंदिर फूल ये सब जितना जो पूजा सामग्री जो है वो, ये है हमारा परिस्थिति, या दुर्दशा या दुर्वस्था जो भी बोल सकते हैं। नाउ सपोज ये देश को चलाने के लिए क्या चाहिए? 2 विषय चाहिए, देश हो या आपका परिवार हो। एक तो है एक इंस्टीट्यूशन चाहिए, संस्थान चाहिए। देश का चलाने के लिए संस्थान है सरकार। सरकार कैसे चलती है? उसके लिए धन चाहिए, फाइनेंस। दैट मीन जो भी आप व्यवस्था, एक व्यक्ति हो, एक संस्थान हो, उसको चलाने के लिए आपको धन चाहिए, और बड़ा भी चलाने के लिए एक संस्थान चाहिए। नो, हिंदुइज्म के लिए जो भी जो एक धर्म के लिए उसका जो मंदिर है, उसका जो चर्च है, उसका जो मस्जिद है, ये है उसका संस्थान। बिना मस्जिद से इस्लाम तो नहीं चल सकते, बिना चर्च से क्रिश्चियनिटी नहीं चल सकते। और जो मंदिर में, जो चर्च में और जो मस्जिद में जो ज़कात देते हैं, जो तीटे देते हैं, बिना वो इनकम से तो वो उसका धर्म नहीं चलते। परंतु हिंदुइज्म कैसे चलेगा? मंदिर हमारा नहीं है, मंदिर से जो इनकम आता है लोग देते हैं, जो वहाँ जो हुंडी में जो देते हैं, जो सोचते हैं जो धर्म के लिए वो दे रहा है, बट ये एक्चुअली सरकार के लिए जा रहा है। सो हाउ हिंदुइज्म कैन रन without institutions and income? A government or a religion cannot run without institutions and this, and both of which are under the government control. This is the परिस्थिति है temples का। नेक्स्ट, ये देखिए, ये है हमारा देश। जो मंदिर का ऐसा सरकार ने ऐसा पूरा बंदी बना के रखा है, 2 लाख मंदिर उसके साथ में, और उसके साइड में आपको तो एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली वो तो थोड़ा दूर है, दिखाई नहीं दे रहा है।
इसमें जो ग्रीन है ना, जो जितना है वो हिंदू मंदिर है। दैट मीन सरकार ले सकते हैं, सरकार का मैंने जो कब्जा में रख सकते हैं, उसका जमीन ले सकते हैं, ये सब है। और बाकी तीनों में ये जो मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस एंड सिख्स, उसका जो प्रार्थना स्थल है, जो उसको प्लेसेस ऑफ वर्शिप, दे आर फ्री। वेयरएज हिंदू का जो जितना है वो पूरा सरकार नियंत्रण में है। नेक्स्ट प्लीज। देन कम्स सेक्टेरियन फंडिंग। आर्टिकल 27 बोलते हैं सरकार ने जो भी कर ऐसा नहीं लगाना चाहिए जो जिस कर से आप एक धर्म को प्रमोट कर सकते हैं। दैट मीन्स the government cannot impose any tax for the promotion of any religion. That is very good. There is no problem in this. But then reality क्या है? Next please. ये है पिछले जो 2014 से मैं डेटा लिया हूँ, 2014 से जब जो हमारा जो मोदी बीजेपी का सरकार आया है केंद्र में, अभी तक 2022 तक 2014-15 में 3,140 करोड़ माइनॉरिटी के लिए है, एक्सक्लूसिव फॉर माइनॉरिटी अपीसमेंट सरकार बजटेड अमाउंट है। 2015-16 में 3,736 करोड़, 2016-17 में 3,827 करोड़, 2019 एंड 20 में 4,700 करोड़, 2020-21 में 4,005 करोड़, 2020-21 में 4,346 करोड़, 2022-23 अभी जो चल रहा है जो फाइनेंशियल ईयर, इसमें 5,020 करोड़ एनुअल बजट फॉर प्रमोशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट्स। ये टोटल पिछले जो 9 साल में जो हुआ है 37,669 करोड़ केंद्र सरकार ने केवल माइनॉरिटी अल्पसंख्यक वर्ग के लिए वो अलॉट किया है। मैं करता हूं दैट इक्वल अमाउंट हो सकता है और उसे अधिक भी हो सकता है। दैट मीन्स अगर आप दोनों मिला दीजिए, दैट मीन्स 37,669 करोड़ by the central government and equal amount. That means it is almost 80,000 crores in the last 9 years has been spent exclusively for non-Hindus. Now, उसका साइड में मैं पॉपुलेशन दिया हूँ। As per the 2011 का जो पॉपुलेशन जो जनसंख्या जो हिसाब से 79.80 is the Hindu population. बाकी 14.23% मुस्लिम, 2.3 क्रिश्चियन, वैसा वैसा है। 79.80 मीन्स सारा 80%। 80% मीन्स यही प्रोपोर्शन में, इस प्रोपोर्शन में जो माइनॉरिटी का जो प्रोपोर्शन में दिया है, हिंदुओं का कितना पैसा देना चाहिए जो हिंदुओं को वेलफेयर के लिए? 1,50,676 करोड़ केवल केंद्र सरकार देना था। अगर उसी आप रेशियो में अगर देखें, इतना केवल हिंदुओं के लिए खर्च करना चाहिए था। स्टेट गवर्नमेंट का उतना ही सेम अमाउंट, अनदर 1,50,000, दैट मीन्स 3 लाख करोड़ हिंदुओं के लिए खर्च होना चाहिए था। मगर एक पैसा, बड़ा सोना, एक पैसा भी नहीं दिया है हिंदुओं के लिए। उधर संविधान बोलते हैं आर्टिकल 27 में ये आप ये नहीं करना चाहिए, परंतु ये है जो परिस्थिति, रियलिटी ये है। नेक्स्ट प्लीज। फॉर माइनॉरिटीज के लिए, केवल अल्पसंख्यक के लिए कितना बॉडी है देखिए। एक मिनिस्ट्री है, देयर इज ए मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ मेजॉरिटी अफेयर्स तो नहीं है। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज है, देयर इज नो नेशनल कमीशन फॉर मेजॉरिटी। देयर इज अ वक्फ बोर्ड, देयर इज ए टेम्पल बोर्ड नहीं है केंद्र सरकार में। हज कमेटी है, बट बाकी तो हिंदुओं के लिए जो तीर्थ यात्रा के लिए कोई कमेटी नहीं है। नेशनल माइनॉरिटी डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, मेजॉरिटी के लिए कोई डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन नहीं है। मेजॉरिटी का क्या उन्नति नहीं चाहिए? नेशनल वक्फ डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, तीर्थ यात्रा डेवलपमेंट के लिए कुछ कॉर्पोरेशन है? ऐसा कुछ नहीं है। देन मौलाना आजाद एजुकेशनल फाउंडेशन फॉर द चिल्ड्रन, पर हिंदू बच्चों के लिए कुछ है क्या? कुछ नहीं है। देन नेक्स्ट प्लीज। देन मोदी जी ने अनाउंस किया है 5 करोड़ स्कॉलरशिप फॉर माइनॉरिटीज इन 5 years।
और पिछले जो 2 साल से जो सरकार का जो पार्लियामेंट का जो क्वेश्चन का रिप्लाई अनुसार 3 करोड़ 8 लाख, that means 3.08, 3 करोड़ 8 लाख scholarships were given to minorities. उसमें से Muslims got 230 lakhs, that means 2.3 crore lakh scholarships, मैंने उतना बच्चा उसका स्कॉलरशिप मिला है। क्रिश्चियंस को 37.2 लाख स्कॉलरशिप मिला है, बाकी जो सिक्स वगैरह हुई है, परंतु हिंदू स्टूडेंट के लिए कुछ नहीं है। मैं एक उदाहरण देता हूँ इसका, जो हम ये नहीं है दैट जो माइनॉरिटी लोग उसका जो आर्थिक उन्नति नहीं होना चाहिए, सब लोग उन्नति होना चाहिए, बिकॉज देश में जितना नागरिक है सबका उन्नति होना चाहिए। परंतु ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों? अगर कोई हिंदू बच्चा को अगर आवश्यकता है उसको भी स्कॉलरशिप दे दो, मुस्लिम को भी दे दो, क्रिश्चियन को भी दे दो, सिख को भी, सबको दे दो। अब उसका धर्म का क्यों ला रहे हो? मैं एक उदाहरण देता हूँ। सपोज कोई एक हिंदू बच्ची है स्टूडेंट और एक क्रिश्चियन बच्ची है ना मुस्लिम बच्ची है, दोनों का आर्थिक और सामाजिक परिस्थिति समान है, परंतु ये मुस्लिम और क्रिश्चियन बच्ची को वो स्कूल बोलते हैं आपको तो स्कॉलरशिप मिला है, एक साइकिल मिला है, एक फलाना मिला है। ये मुझे क्यों नहीं मिलता है साइकिल? मुझे क्यों नहीं मिलता है फ्री स्कूल बुक्स, फ्री स्कूल यूनिफॉर्म, ये सब क्यों नहीं मिलता है मुझे? एंड अगर वो सोचती है ठीक है, अगर वो मैं भी अगर मुस्लिम और क्रिश्चियन बन जाऊं मुझे भी मिलेगा, सो शी कन्वर्ट्स। हिंदुओं को प्रोत्साहन दे रहे हैं आपको धर्म परिवर्तन करो। Now, what is the difference between a Christian missionary and government? कुछ अंतर है क्या? कुछ नहीं है। वो भी कन्वर्शन कर रहे हैं, आप भी कन्वर्शन कर रहे हैं। सो ये है इसका प्रॉब्लम। ये 37,000 करोड़ देने में प्रॉब्लम नहीं है, बट दिस इज क्या है, प्रलोभ दिखा रहा है। अगर आप कन्वर्ट करो, आप मुस्लिम बन जाओ, क्रिश्चियन बन जाओ, आपको भी मिल जाएगा। एंड ये किससे पैसा? जो सार्वजनिक पैसा है, ये ऐसा नहीं है जो किसी एक मंदिर से लिया, ना किसी एक चर्च से लिया, ना किसी मस्जिद से लिया है। सो दिस इज द ग्रेटेस्ट डेंजर। द स्टेट एंड गवर्नमेंट्स, इंडियन स्टेट, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स आर एक्टिंग लाइक मिशनरीज एंड दावातीस in trying to appease and convert Hindu students or Hindus into minorities. इतना स्कीम है, नेक्स्ट प्लीज, इतना स्कीम है जो माइनॉरिटीज के लिए। मैंने नई उड़ान, नई किरण, क्या पढ़ो परदेश, शादीशुगन, नई मंजिल, हुनर हट, नया सवेरा, सीखो और कमाओ, देन स्किल डेवलपमेंट, उस्ताद, फ्री यूपीएससी ट्रेनिंग, 1 लाख फॉर यूपीएससी स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट फ्री लोन्स एंड hundreds of crores of scholarship, हमने जो बात किया है, एंड मदरसा स्टूडेंट्स, ये सब है। अब एक स्कीम दिखाइए खाली हिंदुओं के लिए। There is not even one scheme, either for Hindu student or Hindu workers or Hindu this. Whereas all these are for only minorities and for nothing for Hindus. Next, please. Ambedkar, because now it is very important to remember Ambedkar words, because 1947, 14th on this day, this night only India was divided. Ambedkar warned, he wrote a book also, Pakistan or Partition of India. मेरा अनुरोध है आप सब इसको पढ़ें। He said on minority appeasement, Congress, at that time Congress party, Congress has failed to realize that the policy of concessions has increased the Muslim aggressiveness, and Muslims interpret these concessions as a sign of defeatism on the part of the Hindus and absence of the will to resist. Now today the same thing applies. Instead of Congress you read it as BJP. The same thing applies. This is none other than the one who drafted the constitution, large parts
of it. He was chairman of the drafting committee. I don't say drafted the constitution, chairman of the drafting committee. He was the one who said this. We need to remember Ambedkar today and say whether we are following his ideals or not. Next, cultural and educational freedom. This is the last one. I'll take. Next, please. This is Article 28. इसमें जो बोलते हैं that जो भी सरकार स्कूल है, जो भी सरकार से जो अनुदान मिलता है, उसमें religious education नहीं होना चाहिए. This is the sum and substance of this article. इसका परिणाम क्या है? Next, please. Effect of Article 28. If you know, हम जो सभ्यता बारे में हमने स्टार्ट किया था, जो मेरा जो भाषण में, we are a knowledge-based civilization. That is why we are still surviving. Unlike all other 46 civilizations, the ancient civilization, as per the UNESCO list, 45 died. India, Bharatiya Hindu Sabhyata is the only one which is surviving because we believe in knowledge. We are knowledge-based civilization. And knowledge कैसा होता है? Unless you spread knowledge, how does it happen? It doesn't spread. What is the mode of spreading? Education. But education, Article 28 बोलते हैं that you cannot teach religious education. So what is religious education? The Constitution, संविधान define नहीं किया. ऋग्वेद से लेके, नीति शास्त्र से लेके, महाभारत से लेके, रामायण से लेके, पंचतंत्र लेके, सबको मैंने जो जितना जो संस्कृत और भारतीय भाषाओं में जो वाङ्मय है, जो लिटरेचर है, वो सब has been classified unofficially. There is no order as a religious education. So as a result, आप देखिए, you go to any Western country, they teach their oldest texts. शेक्सपियर का जो पढ़ाते हैं, उसका प्रति इलियड बोल के जो there is a old text they teach. Ours is Rigveda is the world's oldest known text. इससे पुरातन टेक्स्ट वाङ्मय नहीं है, एटलीस्ट जानकारी में नहीं है. We should be proud of that. But we banished it from our teaching. महाभारत is the longest poem ever written. Even आज तक भी कोई उतना बड़ा पुस्तक कोई नहीं लिखा है. फिर भी we have banished it from our education, public education. जो घर में पढ़ना अलग बात है, public education I am talking of. And like this, the whole of our civilizational texts and literature, which is the knowledge, we have banished it from our public education. Now, how does this civilization survive? Because of Article 28. Now, recently, somebody filed a case in Supreme Court. केंद्रीय विद्यालय में जो उपनिषद सेइंग है ना, असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्मय मृत्योर्मा अमृतंगमय, उसको जो बच्चे लोगों को जो मॉर्निंग प्रार्थना में उसको जो रिसाइटेशन होता था, he filed a PIL in Supreme Court saying that as per Article 28 this is a religious education. अभी तक तो मैंने पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, मैंने परिस्थिति यहाँ तक आया है, उसमें क्या रिलीजन है? असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय, इसमें क्या रिलीजन है? टेल मी which religion does not say this good thing? What is the objection to it? Because it is from Upanishad, so therefore it has to be banned. But this is the ridiculous level to which we are self-destructing ourselves. जो लेमिंग कॉम्प्लेक्स हमने जो बोले थे. नेक्स्ट प्लीज. देन कम्स आर्टिकल 29. इसमें आर्टिकल 29 टॉक्स अबाउट एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स, बट दिस आर्टिकल ओनली टॉक्स अबाउट कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स फॉर माइनॉरिटीज. मेजॉरिटी को क्या कल्चरल राइट्स और कल्चरल राइट्स नहीं चाहिए क्या? बिकॉज मेजॉरिटी डू नॉट हैव कल्चरल राइट्स, तो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट दे इंटरफियर इन द त्रिपुरेश्वरी मंदिर इन त्रिपुरा, जो पशुबली, सबरीमला, जो इतना है ना, जो दे इंटरफियर इट. We do not have fundamental right, cultural rights, whereas only minorities have it. Next. Now the question is, I am talking about minorities. Suppose, imagine I don't have children. जब I am childless,
Can I say that I have a younger child? What is secularism? Secularism means धर्म निरपेक्ष. That means सरकार को कोई धर्म नहीं है, जो राष्ट्र को कोई धर्म नहीं है. जब राष्ट्र को धर्म नहीं है, वहाँ अल्पसंख्यक और अधिक संख्यक बोल के कहाँ से निकलता है जो धर्म? When I don't have a child, I cannot say that I have a younger child or elder child. ये तो नहीं हो सकता ना. I am the childless. When the government is religionless, how can it say that there is somebody who is younger, who is minority and who is majority? But this is absurd level. Then other thing is, suppose if you want to declare some religions as minority, no problem. You declare Hinduism as the state religion and others are minority religions. But you cannot, you want to do that. आप ये भी नहीं करते हैं, तो ये भी करना चाहते हैं. That means on both sides we are getting affected. Next. This is Article 30. Very interesting thing. It says that only minorities have right to establish educational institutions of their choice and manage them without interference from the government. Hindus can start schools, there is no problem, but that is a civil right, not a fundamental right. Now, when a Hindu starts a school, there is a famous case, the Ramakrishna Mission schools. I'll come to the next, please. So, because of that, now the government has made a law that's called National Commission for Minority Education Institutions Act. इसका रोल क्या है? To protect educational rights of minorities. To interfere before the court if the minority educational rights are violated by the government. And also to recommend to the government ये minority education के लिए क्या-क्या करना चाहिए. परंतु हिंदुओं का एजुकेशन के लिए कुछ नहीं है. There is no law for the education of Hindus. Why can't you have simply a national commission for education? So that it takes care of everybody, both Hindus, majority, minority, everyone. Why only for minority? This is the reality. Now, here I will talk about this one. This Article 30, it prevents intergenerational transmission of knowledge. अब जो वेद है, जो भी हो, एक परंपरा से आता है, but it seeks to break that. Once there is a breaking of the intergenerational transmission, it's like a river. You stop it, then the river stops flowing below. It may go elsewhere, or it may die, whatever. Like Saraswati river died long ago. So it stops that. That means it's effectively destroying our civilization. Then it leads to fragmentation of society, Hindu society. How? Ramakrishna Mission here, because of the state interference in Bengal by the CPM government of that time, it became it reached such a level that Ramakrishna Mission was unable to run the schools. So they went to Calcutta High Court saying that we are not Hindus, you please declare us as minority. And Calcutta High Court passed orders in their favor. Luckily, the government went into Supreme Court appeal, where Supreme Court struck it down, saying that Swami Vivekananda started. No, how can you say that you are not Hindus? But they said, no, we are being harassed. Because they are majority, the Ramakrishna Mission was harassed. So they wanted to get away from Hinduism, saying that we have nothing to do with them. So similarly, Lingayats in Karnataka, they have been saying that we are not Hindus. If everyone says that Shakta people say we are not Hindus, Vaishnava people we are not Hindus, Shaiva people we are Hindus, or Lingayats we say, then who are Hindus? That means it is breaking Hindu society. Then the other one is, suppose I eat chicken today. Will I become chicken? I will not become chicken. मैं अगर मांस खाया तो then हम तो जो goat नहीं बन सकते. But
बट अगर हमको जो भी जो माइंड में जाता है, वी बिकम दैट. We don't become what we eat, we become what we read and what we study, what we are taught. By preventing Hindu knowledge to the Hindu students, we are making them non-Hindus. This is the danger of Article 30. We are preventing them. We are only namesake Hindus. I am Nageshwara just because my name sounds like Hindu, therefore I think. But am I living like a Hindu? Like my parents, my grandparents, my great-grandparents? It's not so. Because the education I got, what education they got, I am not getting that education. What they were eating, I may be eating the same thing. But what education they got, I am not getting it. So that is the Article 30 is the danger. Then, lastly, a civilization, unless the state nurtures, a civilization can survive only as long as a government and the state, राष्ट्र और सरकार, ये दोनों का अगर जो पोषण नहीं देता है, ये सभ्यता मर जाता है. अभी हिंदू सिविलाइजेशन, हिंदू सभ्यता का ये अनाथ है, परिस्थिति अनाथ है. अनाथ जैसा बच्चा मर जाता है माल न्यूट्रिशन होके, परिस्थिति हमारा वही है. देन ये सो दी व्हाट इज द आउटकम ऑफ ऑल दिस वी डिस्कस्ड. आर्टिकल 25 से लेके 30 तक हमने डिस्कस किया है. 25 दैट इज 6 आर्टिकल्स. In all these 6 articles, the reality is that Hindus do not have equal rights on par with minorities. Minorities को जो अधिकार दिया गया है संविधान में, वो अधिकार हिंदुओं, ये है जो रियलिटी है, वास्तव है, अभी जो हकीकत है. As a result, Hindus are dhimmis, second-class citizens in their own country, in their own homeland. Our situation is no different from Hindus in Pakistan, Afghanistan and Bangladesh, except that हम तो थोड़ा मेजॉरिटी है. जिस दिन मेजॉरिटी कम हो जाएगा ना, यही कॉन्स्टिट्यूशन सबको लेके पूरा यू भी जो छोटा मोटा अभी राइट है ना, वो भी दे विल आल्सो डिनाई इट. दैट इज द ग्रेटेस्ट डेंजर एवरी हिंदू मस्ट अंडरस्टैंड. As I said about this one's our inheritance. Our children will ask, Papa, Mummy, आपने क्या? Have you done anything for our this, whether we are alive or not? But they will definitely question us. Have you done enough to protect our rights? Unfortunately, Hindus do not know that. No, the constitution itself is the problematic thing. We are not asking anything. All that we want is that you treat us on par and equally with minorities. We don't want, because we want every Indian citizen to be equal. Absolutely no problem. Don't discriminate anyone, whether it is minority or majority. If the constitution has given 2 sofas for the minorities to sit, and if Hindus are made to sit on the floor, हमको भी एक सोफा दीजिए, हम भी सोफा पर बैठे. इसका मतलब यह नहीं उसका सोफा से उसको उठाएं, नहीं है. हम मांग रहे हैं हमको भी एक कुर्सी दे दो, सोफा दे दो, उसके समान हम बैठे. This is what is required. As I said, out of 46 ancient civilizations, we are the only one surviving. For 1300 years, हमारा पूर्वजों ने लड़ाई किया है, पूरा सैक्रिफाइस किया है, उसका धन मन और प्राण से सैक्रिफाइस करके इस सभ्यता को रक्षा करके हमको दिया है. परंतु पिछले 72 साल से 72 इयर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन में जितना जो हानि हुआ है हमारा जो सभ्यता को, वो 1300 साल का जो उसका जो त्याग पूरा मैंने खत्म होना है. सो देयरफॉर हम सभी पॉलिटिकल पार्टीज को, सब लोग को यही अनुरोध करना है, हमको समान अधिकार दे दो. संविधान को अमेंडमेंट करो, आर्टिकल 25 से लेके 30 तक हमको समान अधिकार दे दो. हम भी समान रहना चाहते हैं, सो दैट हमारा सभ्यता बच सकते हैं. एंड इंटरेस्टिंगली
मुस्लिम इंडिया एक जर्नल चलाता था, ही वाज द वन हु वाज अपोजिंग राम जन्मभूमि वगैरह वगैरह, ही वाज अपोज टू दी मेनी दिस वन। बट उसको ये आर्टिकल 30 देखने के बाद उसको इतना दया हो गया, अरे यार हिंदू बेचारा है, ये तो उसका कम से कम उसका स्कूल चलाने के लिए उसका अधिकार नहीं है। वो स्वयं एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लोकसभा में प्रेजेंट किया है, वो है भी, आप थोड़ा नोट कर सकते हैं, बिल नंबर 36 ऑफ 1995। वो बोले हैं जो माइनॉरिटी शब्द जो संविधान में है उसको हटा के सबको ऑल सिटीजन्स बोल के वो दिया है जब। इमेजिन द पिटी दैट ए मुस्लिम हैज फॉर द हिंदू कंडीशन, इवन आवर ओन हिंदूज डू नॉट हैव। सो कॉल्ड हिंदुत्व, हिंदू, ये सब तो लीडर्स है, ये हमारा दुर्दशा है। सो दिस इज द रियलिटी। हम करना क्या है? एज आई सेड, we should fight for equal rights for Hindus on par with minorities by amending articles 25 to 30. वो होने से क्या होगा? We can start the process of re-Hinduization. पुनर्हैंदवीकरण, हिंदू समाज को पुनर्हैंदवीकरण करना चाहिए। वो करने से ही हमारा सभ्यता का जो पूरा उन्नति होगा, सिविलाइजेशनल रेनेसांस जो होते हैं ये होगा। जब तक ये इक्वल राइट्स नहीं होगा तो हमारा सभ्यता ऐसे क्षीण हो जाता है, उसका तो खत्म हो जाता है। दिस इज द रियलिटी एंड दिस इज द रिन्यूड एक्सपेक्टेशन। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। दिस इज द रिन्यूड एक्सपेक्टेशन दैट वी शुड फाइट फॉर इक्वल राइट्स फॉर हिंदूज ऑन पार विद माइनॉरिटीज। वी डू नॉट वांट इतना भी जो ये माइनॉरिटी से अधिक इतना भी हमको नहीं चाहिए, उसका जो भी है हमको उतना ही दीजिए बस। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। जो रसूल मकबरा जी, बहुत धन्यवाद, आपको इन्वाइट किया है, हम सब लोगों को थैंक यू, हमको ये अवकाश दिया है, आप लोग पेशेंटली सुना है। अगर मेरा कुछ बोलने में अगर कुछ इन केस देयर इज ए कम्युनिकेशन गैप, प्लीज एक्सक्यूज मी, बिकॉज मैं लैंग्वेज में भी स्लाइटली हिंदी तो इतना ठीक नहीं है, बट आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू कम्युनिकेट इन बोथ द लैंग्वेजेस। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।